दुनियाज़ा रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद तलावत करता हूँ। दोस्तों, आज हम फीडर लाइन एक अबेंडेंट सेक्शन, एक खूबसूरत स्टेशन सकरन जंक्शन पर आ गए। सुबह हमने नवाज़ दहरी को विज़िट किया था, वो व्लॉग ऑलरेडी आप देख चुके हैं, और अभी शाम के 4 बजे हैं और हम खड़े हैं सकरन जंक्शन पर। तो इंशाल्लाह सकरन जंक्शन के मुतालिक आपको देंगे मालूमात। यहाँ रेल फैनिंग तो नहीं हो सकती क्योंकि 92 से ये सेक्शन अमलन बंद है, मगर जहाँ जो कुछ बचा है, जो रेल के आसार बचे हैं, वो आपको हम किसी हद तक दिखा सकते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ जाइए और देखिए सकरन का शानदार माजी। तो चलिए घूमते हैं सकरन। यह है स्टेशन रोड, जो कि अब मसरूफ़ बाज़ार बन गया है। ये रोड ओपन वेटिंग हॉल के सामने पड़ता है और वेटिंग हॉल से गुज़रकर मुसाफिर प्लेटफार्म पर दाखिल होते थे। यह है जनाब सकरन जंक्शन की इमारत। फीडर लाइन का एक मसरूफ़ स्टेशन सकरन जंक्शन, जो कि अपने महल वक़ूअ के एतबार से एक अहम हैसियत का हामिल था। यहाँ से एक लाइन नवाबशाह की तरफ निकलती थी, जो कि 18 किलोमीटर पर मुश्तमिल थी, जबकि दूसरी लाइन टंडो आदम और ठारू शाह को कनेक्ट करती थी। टंडो आदम ठारू शाह सेक्शन और नवाब शाह सकरन सेक्शन का इफ्तिताह एक ही दिन यानी 10 दिसंबर 1931 को हुआ था। ये दोनों सेक्शन 150 मील पर मुहित थे। पुराने ज़िला नवाब शाह की हदूद में वाक़ फीडर लाइन का ये स्टेशन टंडो आदम से 40.58 मील यानी 66.41 किलोमीटर मार्कअप पर मौजूद है। यह इमारत और वेटिंग हॉल 1932 में तामीर हुए, जबकि साथ में ये पोर्शन जिसमें एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया, ये 1939 की तामीर है। एक और एंगल से स्टेशन बिल्डिंग। इस बरामदे में एक वसी और अरीज़ हॉल, और ये साथ में ये आगे दफ्तर स्टेशन मास्टर, जिसके साथ ही ये नोटिस बोर्ड्स भी आवेज़ा होते थे, और ये आखिर में दफ्तर ASM यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। आइए अब ASM ऑफिस का रिव्यू लेते हैं। दोस्तों, उस वक्त लाइन क्लियर मोर्स टेलीग्राफी के ज़रिए लिया और दिया जाता था, तो वो सिस्टम यानी कीज़ और साउंडर वगैरह सामने टेबल पर नस्ब होते थे। यह है ओपन वेटिंग हॉल का फ्रंट लुक। हॉल में दाखिल होते ही ये मेरे बाएं जानिब टिकट विंडो, जहां से मुसाफिरों को टिकट दिया जाता था। काफ़ी वसी और अरीज़ हॉल। बाद में एक टिकट काउंटर हॉल के दूसरी जानिब भी बनाया गया। साथ में लेडीज़ वेटिंग रूम,
اس ویٹنگ روم کے اندر سے بھی ٹکٹ ونڈو ہوتی تھی جہاں سے عورتیں اپنی ٹکٹ خرید کرتی تھی۔ ویٹنگ ہال کے یہ 7 ہی کلاس 3 کے کوارٹرز ہیں جو کہ اسٹیشن ماسٹر اور اہم حضرات کے لیے مخصوص ہوا کرتے تھے۔ دوستو ایک اور امیزنگ چیز، اسٹیشن بلڈنگ کے سامنے پلیٹ فارم پر نصب لیور فریم جہاں سے سگنل آپریٹ کیے جاتے تھے آج بھی موجود ہے۔ دوستو یہ سکرن یارڈ کے پلیٹ فارم نمبر 1 اور پلیٹ فارم نمبر 2 کے مناظر ہیں جہاں پر ہر طرف بھینسوں کا گوبر پھیلا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی اس پلیٹ فارم پر بھی رونق ہوا کرتی تھی جہاں آج صرف گندگی کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچا۔ پلیٹ فارم نمبر 2 پر موجود یہ نیم کا درخت 100 سال سے بھی زیادہ قدیم بتایا جاتا ہے۔ اب پلیٹ فارم پر موجود اسٹیشن بلڈنگ کا ایک منظر۔ اب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سکرن جنکشن کی فریٹ برتھ۔ دوستو یہ علاقہ دریائے سندھ کے بہت قریب ہے جس کی وجہ سے سرسبز اور شاداب رہا ہے۔ یہاں کا پھل اور سبزیاں ملک کے مختلف شہروں کو ارسال کی جاتی تھی۔ فریٹ برتھ کا ایک حصہ صرف مچھلی کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ دریائے سندھ کے کچے کے علاقے سے بڑی تعداد میں لکڑی بھی لائی جاتی تھی۔ یہ ایک منافع بخش اسٹیشن ہوا کرتا تھا۔ اس گوڈس ورکنگ کی وجہ سے نہ صرف ریلوے ڈپارٹمنٹ کو فائدہ پہنچتا تھا بلکہ سینکڑوں لوگوں کا روزگار بھی لگا رہتا تھا۔ گوڈس برتھ کے ساتھ نیم کے اس گھنے قداور درخت کے سائے میں یہ پارسل آفس ہوتا تھا جہاں پر کبھی بیوپاریوں اور مزدوروں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ دوستو ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ آج سینئر اسٹیشن ماسٹر محترم نذیر کیسر صاحب موجود ہیں۔ نذیر کیسر صاحب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ان کی پیدائش بھی سکرن کی ہے، تو یہیں پہ تعلیم پائی۔ اس کے بعد سروس کے بعد ریلوے میں ایز اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر سروس میں آئے اور 37 سال سروس کر کے ریٹائر ہوئے ایز اسٹیشن ماسٹر۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے سکرن جنکشن کے حالات، کیونکہ نذیر صاحب 1982 میں یہاں پر ایز احسن ورکنگ بھی کر چکے ہیں، تو یہ اپنے تجربات آج ہم سے شیئر کریں گے اور بتائیں گے اس وقت کا ماحول یہاں پر کیسا تھا۔ السلام علیکم شاہد صاحب، بڑی مہربانی آپ نے موقع دیا۔ یہ ہماری تو تعلیم پرائمری کی بھی یہیں سکرن کی ہے اور ہائی اسکول بھی اپنے یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے، اور پاکستان ریلوے میں 1980 میں ہم آئے اور 1982 میں اسی سکرن اسٹیشن پہ ایز اے اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر میں نے انجام کیا ہے۔ الحمدللہ اس وقت گاڑیاں کافی چلتی تھیں، صبح کے ٹائم بھی 3 گاڑیاں آتی تھیں، دوپہر کو بھی اور شام کو بھی، کیونکہ یہ
रेलवे का फीडर लाइन का तो कि वाहिद बड़ा स्टेशन सकरण जंक्शन। नवाबशाह से सकरण में ये भी 3 टाइम ट्रेन आती थी और टंडो आदम से वाया मोरो थारुशा और पटियाला के लिए भी ट्रेन चलती थी यहाँ, जो कि वो भी तकरीबन सुबह के टाइम भी 3 ट्रेन थी और शाम के टाइम। ठीक। और जिस वक्त भिक्षा का मेला वगैरह लगता था उस वक्त यहाँ स्पेशल ट्रेनें चलती होती थी और स्पेशल स्टाफ आता था जिसमें टिकट कलेक्टर वगैरह BTCR वगैरह और शंटिंग स्टाफ एक्स्ट्रा यहाँ पाकिस्तान रेलवे यहाँ डिप्यूट करती थी ताकि मुसाफिरों की सहूलत के लिए उनको आसानियाँ हों। और इसके अलावा माशाल्लाह यहाँ रेलवे के टी स्टॉल वगैरह भी होते थे, जो कि रश माशाल्लाह काफ़ी होता था और ये रेलवे की बहुत ज़्यादा अर्निंग भी देता था स्टेशन। लेकिन ये बदकिस्मती है कि कुछ लोगों ने अपनी अना के लिए इस फीडर लाइन का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, वरना ये नहीं होता कि कोई मरीज़ अगर बीमार हो जाए उसको इलाज ना कराया जाए, उसको बाहर फेंक दिया जाए, बल्कि उसका इलाज कराया जाता है। ये भी देखा जाता है कि ये फीडर लाइन जो है क्यों कर नाकाम हुई या किसने नाकाम किया। यहाँ अगर उस वक्त इसको मज़ीद एक मेन लाइन से मिला दिया जाता और ये बिल्कुल बहुत अच्छा ये मतलब ज़रिया साबित होती, लेकिन ये बदकिस्मती है कि इस रेलवे लाइन का बेड़ा गर्क करने में हमारे अपनों का ही बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह ताला हदायत दे। तो बाकी ये काफ़ी लोगों का ज़रिया माश भी था यहाँ, लेकिन ये अभी तकरीबन 1992 से इस लाइन का, इस फीडर लाइन का कोई पुरसान हाल नहीं है। हम दुआ करते हैं और अपने पाकिस्तान रेलवे से इस चीज़ की रिक्वेस्ट भी करते हैं कि खुदा रहे इस रेलवे लाइन को देखा जाए और इसके लिए कोई सही सद्देबात किया जाए ताकि ये वही रौनकें दोबारा बहाल हो सके। बड़ी तलाश के बाद ये डाउन एंड का पोर्ट नज़र आया जो कि झाड़ियों में घिरा हुआ था, मगर अब इस पर सिर्फ सियासी नारे लिखे हुए हैं। इसके बिल्कुल सामने अब प्लेटफॉर्म पर मौजूद ये नेमिंग बोर्ड मखदूश हालत में मिला है जो कि गंदगी से अटा हुआ है। शिमाल की तरफ नस्ब ये ब्रिटिश दौर का वाटर कॉलम, जनूब की जानिब भी ऐसा ही एक वाटर कॉलम मौजूद है। ये रेलवे ग्राउंड हुआ करता था जहाँ पर न सिर्फ रेलवे मुलाजमीन के बच्चे मगर शहर के बच्चे भी आकर खेला करते थे। सकरन जंक्शन स्टेशन पर मौजूद रेलवे पुलिस थाना। दिलचस्प बात यह है कि आज भी यहाँ पर रेलवे पुलिस के जवान तैनात हैं। पुलिस चौकी के करीब ये SHO साहब का बंगला हुआ करता था जो कि अब भी काफ़ी बेहतर हालत में मौजूद है। स्टेशन के जनूब में वाक़ई ये 2 अदद वाटर टैंक जो स्टेशन और रेलवे कॉलोनी को पानी फराहम करते थे। वाटर टैंक के साथ 3 अदद वाटर पंप भी थे जो अब झाड़ियों में घिरे हुए हैं। नीम के घने दरख्तों में घिरी हुई ये सामने नज़र आने वाली इमारत PWI साहब का बंगला हुआ करता था। दोस्तों, सामने नज़र आने वाली ये इमारत रेलवे वर्कशॉप कहलाती थी।
اسٹیشن کے جنوب میں سابو راؤ ریلوے اسٹیشن اینڈ پر موجود یہ ریلوے کی آخری نشانی، یہ اب کا ہوم سگنل تھا۔ اس سگنل کی کچھ باقیات اب بھی موجود ہیں۔ اس اسٹیشن کے جنوب میں سابو راہو اسٹیشن اور شمال میں سکھیو مناہے جو اسٹیشن واقع تھے۔ اب کے ہوم سگنل کے ساتھ ساتھ یہ نظر آنے والا روڈ اب کی لوپ لائن کی پٹری پر بچھایا گیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کوشش۔ ہمیں امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو ہماری یہ کوشش بھی پسند آئی۔ ابھی دوست بیٹھے ہیں مودودی وزیر صاحب کے ساتھ ریفریشمنٹ کر رہے ہیں اور یہیں پر ہم اپنا ولاگ کا اختتام بھی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلی کسی منزل پر۔ اللہ